Om Namo Dhanvantaraye Namaha. So friends, I welcome you to the video lecture series of Vision Ayurveda Academy. Myself Vaidya Amol Ganesh Das Khatri. I completed my post-graduation from Government Ayurveda College, Nagpur in Kai Chikitsa department. Today we are going to study a new topic, that is Sharir Kriya or Kriya Sharir. See friends, our syllabus of graduation is distributed in year-wise pattern, and this subject Sharir Kriya comes under the first year of BMS. The topics under this subject belongs to the physiology of the body, that is Sharir Kriya, and these topics are the compilation of various topics distributed in various Samhitas. There is no particular Samhita, Sthan or Adhyay which is completely dedicated to the physiological process happening to the body in Ayurveda. So we have compiled all these topics which are scattered in various Samhitas, various Sthan and their various Adhyayas under one subject, that is Sharir Kriya. In exam also, the questions which are asked are based on the subject. As per entrance point of view also, this is one of the important subject. Usually 10 to 12 questions are to be asked on this subject. Friends, before starting our video lecture, I would like to say something, that our video lecture will be divided into three stages. Stage 1, which includes revision of previous topics. Stage 2, which includes study of new topic with techniques, concepts and with codes. And stage 3, which might bother you, that is a little homework. So you have to be very keen, smart and dedicated to your studies. We will study this subject smartly and with techniques so that you will be able to remember all the topics throughout the year. And this will make your study easy and interesting, and you will not get bored of your studies. Friends, to avoid a language barrier, we will use Hindi as our primary language because we all are familiar to this language. So friends, now we will start our first lecture of Sharir Kriya. फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम शारीरिक क्रिया का हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हम पहला पॉइंट देखने वाले हैं ओज। ये ओज का टेबल आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये एक बार टेबल हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही ओज को एक स्लाइड में प्रेजेंट करके बताता हूं ताकि आपका एक विजुअल मेमोरी उसमें बन जाए। सी फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड आ चुका है, उस स्लाइड में ओज के बारे में जितने भी डिटेल्स है वो हमको एक बार देखना है। फ्रेंड्स, ओज का वर्णन लगभग सभी आचार्यों ने अपने संहिता में किया है, लेकिन चक्रपाणी आचार्य ने सर्वप्रथम ओज के दो भेद माने हैं। सो हमें चक्रपाणी आचार्य का रेफरेंस याद होना चाहिए कि आचार्य चक्रपाणी ने ओज के दो भेद माने हैं। वो भेद कौन से हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है परोज और दूसरा है अपरोज। उसके बाद परोज और अपरोज के स्थान बताए हैं। परोज, वी कैन सी कि परोज कहाँ है? हार्ट में। सो परोज का स्थान क्या है? हृदय। और अपरोज का स्थान माना है संपूर्ण शरीर। फिर इनके प्रमाण पे आते हैं। परोज का प्रमाण बताया है 8 बिंदु। ये बिंदु जो है ये हमें याद रखना है, ये 8 बिंदु है। और अपरोज का प्रमाण जो है वो क्या बताया है? अर्धांजलि, आधा अंजलि ये बताया हुआ है। अपरोज को तीनों दोषों के साथ कंपेयर करते वक्त कफ के साथ कंपेयर किया है, इसलिए इसे श्लेष्मवत ऐसा भी यहाँ पे एक वर्णन किया गया है। ये हमने देख लिए इनके प्रमाण। अब प्रमाणों में भी थोड़ा सा मतांतर है, वो भी हम देखेंगे कि अरुण दत्ता आचार्य ने परोज का प्रमाण कितना माना है? 6 बिंदु। 8 बिंदु की बजाय उन्होंने कितना माना है? 6 बिंदु। उसी तरह से अपरोज का प्रमाण आचार्य काश्यप ने कितना बताया है? 6 अंजलि। अर्धांजलि की जगह पे 6 अंजलि। ये हमें दो रेफरेंसेस अलग से याद रखना है। इसके बाद में हम आते हैं ओज के वर्ण पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है, ओज वर्ण ब्रैकेट में है चक्रपाणी, और ये जो वर्ड लिखा गया है ये व्हाइट कलर में लिखा गया है, श्वेत। इसका मतलब चक्रपाणी के अनुसार ओज का वर्ण कैसा होता है? श्वेत। वो परोज हो या अपरोज हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रेफरेंस पे, चरक और सुश्रुत के अनुसार ओज का वर्ण कैसा है। अब चरक और सुश्रुत दोनों ने ओज का एक वर्ण जो है कॉमन माना है। वो कौन सा है? पीत। पीत के साथ में चरक ने रक्त ऐसा वर्ड अटैच किया है, और पीत के साथ में सुश्रुत ने शुक्ल यह वर्ड अटैच किया है। हम उसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ हम याद रख सकते हैं चरक्त। देखो कैसे याद रख सकते हैं हम? चरक्त। और यहाँ याद रख सकते हैं सुशुक्ल, है ना। इसका मतलब चरक के अनुसार कैसा है? रक्त और पीत। सुश्रुत के अनुसार कैसा है? शुक्ल और पीत।
इस तरह से हम इस ओज को याद रख सकते हैं, है ना। कैसे याद रखना है? ओज के दो भेद किसने बताए? चक्रपाणी ने। पर अपर, परोज का स्थान हृदय, अपरोज का स्थान संपूर्ण शरीर। परोज का प्रमाण 8 बिंदु, अपरोज का प्रमाण अर्धांजलि, और दोषों में वो श्लेष्मा के समान है। अब रेफरेंस चेंज पर आते हैं। परोज का प्रमाण अरुण दत्त के अनुसार 6 बिंदु, अपरोज का प्रमाण काश्यप के अनुसार 6 अंजलि। ये दोनों रेफरेंस हमको याद रखना है। अब आते हैं वर्ण पर। चक्रपाणी के अनुसार ओज का वर्ण कैसा है? श्वेत। चरक और सुश्रुत ने कौन सा कॉमन वर्ण माना है? पीत। चरक ने कौन सा ऐड किया है? रक्त। च रक्त ऐसा बनाया था हमने। और सुश्रुत ने कौन सा ऐड किया है? शुक्ल। सुशुक्ल। इस तरह से हमने बनाया था। बस इतना याद हो गया, आपका ओज का टेबल खत्म हो गया। अब हम नोट्स में जाते हैं और आपको नोट्स में समझाते हैं। ये देखिए, ओज के दो भेद चक्रपाणी ने माने, पर अपर। पर हृदय में, अपर संपूर्ण शरीर में। पर का प्रमाण 8 बिंदु, अपर का अर्धांजलि। चरक ने भी क्या माना है? अर्धांजलि। और उसको किसके जैसा माना है? श्लेष्मा के जैसा। अब हमें चरक सुश्रुत याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्धांजलि है, कोई अलग रेफरेंस नहीं है। अलग रेफरेंस कौन सा है? परोज का अरुण दत्त के अनुसार 6 बिंदु, अपरोज का काश्यप के अनुसार 6 अंजलि, और वो श्लेष्मावती है। वर्ण देखो यहाँ पे, चक्रपाणी श्वेत श्वेत दोनों। अब चरक के अनुसार देखो, आप चरक के अनुसार देखो, पीत कॉमन है। सुश्रुत के अनुसार देखो, पीत कॉमन है। ऐड कौन सा किया है? च रक्त। सुश्रुत ने सुशुक्ल। इस तरह से। अब इस टेबल में एक रेफरेंस थोड़ा सा अलग है, और वो रेफरेंस किसका है? वो है आचार्य डल्लन का। आचार्य डल्लन ने क्या कहा है कि प्रकृति के अनुसार सभी के वर्ण, अपर ओज के वर्ण अलग अलग होते हैं। देखिए, ये तैल वात प्रकृति के लिए है, ये सर्पिया श्वेत पित्त प्रकृति के लिए है, और ये क्षौद्र ये किस प्रकृति के लिए होगा? कफ प्रकृति के लिए। इस तरह से आचार्य डल्लन ने 3 प्रकृति के 3 अलग अलग वर्ण माने हैं। यही टेबल है, यही टेबल हमने स्लाइड में देखा है ना। सो ये पॉइंट क्लियर होता है। सो दिस इज नथिंग बट ओज। ओज का पॉइंट देखने के बाद हम एक और टेबल देखेंगे, जिसमें शुक्र और ओज इनके गंध, रस और रूप में हमने डिफरेंशिएशन किया है ना। ये है। अब हमें गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द, ये सीक्वेंस याद है, क्योंकि ये पंच महाभूतों के गुण है ना। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। तो उसमें से हमने पहले 3 लिए, गंध, रस, रूप। सो ये सीक्वेंस हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हम जानते हैं सीक्वेंस कैसे है। हमें सीक्वेंस याद रखना है कि शुक्र का गंध, रस, रूप कैसा है और ओज का गंध, रस, रूप कैसा है। अब यहाँ एक आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि शुक्र का गंध कैसा है? शुक्र मधुगंधी है। रस, शुक्र का रस मधुर रस है। और शुक्र का रूप कैसा है? तैल और क्षौद्र के जैसे। ये सुश्रुत का रेफरेंस है। अब हमें इसको याद रखना है। याद रखने के लिए जिसको मधुगंधी है, मधुर रसात्मक है और तैल क्षौद्र निपम है याद रहता है वो ठीक है, बट जिन्हें याद नहीं रहता है उनके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे एक कोड अटैच किया है। वो कोड कैसे है? शुक्र है, मधु ने मधुर को तैल और क्षौद्र दिया। शुक्र है, मधु ने मधुर को तैल और क्षौद्र दिया। सो ये मधु ने मधुर को तैल क्षौद्र दिया, क्या होगा? सीक्वेंस से गंध, रस और रूप, क्योंकि गंध, रस, रूप का सीक्वेंस हमको याद है। उसी तरह से ओज के बारे में कैसा करेंगे हम? ओजस्वी होने के लिए लाजवंती ने मधु को घी पिलाया। सर्पीस घी। ओजस्वी होने के लिए लाजवंती ने मधु को घी पिलाया। यहां पॉइंट क्लियर। अब ये जो क्रॉस रेफरेंस है, ये क्रॉस रेफरेंस हमें याद नहीं रखना है। जैसे हम कुछ स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं कि शुक्र का मधु ये गंध है, पर मधु तो ओज का रस है, ऐसे याद नहीं रखना है। क्वेश्चन सिंपल कैसे आएगा? निम्न में से शुक्र का रस है, सो गंध, रस। शुक्र है, मधु ने मधुर को, आंसर मिल गया। क्वेश्चन आएगा निम्न में से ओज का रूप है, गंध, रस, रूप। ओजस्वी होने के लिए लाजवंती ने मधु को घी पिलाया। सो घी सर भी हमारा आंसर आ गया। सो क्रॉस स्टडी हम नहीं करेंगे, हम हमारा जो सीक्वेंस है, जो कोड का सीक्वेंस है वैसे ही याद रखेंगे। कोड कैसे बना है हमने? शुक्र है, मधु ने मधुर को तैल क्षौद्र दिया।
और ओज के लिए कैसा बनाया, ओजस्वी होने के लिए लाजवंती ने मधु को घी पिलाया। ये हो गया। अब यहाँ पे एक रेफरेंस क्या चेंज है, देखो वाग्भट ने तैल शोधन में कौन सा वर्ड ऐड कर दिया है, घृत। ये हो गया फिर से तीन प्रकृति वाला, तैल वात के लिए, शौद्र कफ के लिए और घृत किसके लिए आएगा, यहाँ पित्त के लिए। सो वाग्भट का सिर्फ एक याद रखना है कि वाग्भट ने घृत ऐड कर दिया स्वरूप में, है ना। इस तरह से हम इस टेबल को याद रखेंगे। ये टेबल होने के बाद हमारे सामने एक नया टेबल आया है जिसमें शुक्र की उत्पत्ति दी है ना। शुक्र उत्पत्ति ये दिनों में दी है, यहाँ पे डेज दिख रहा है ना। तो ये यहाँ अलग अलग आचार्य है, अलग अलग आचार्य के अनुसार शुक्र की उत्पत्ति किस दिन होती है ये सेकंड कॉलम में है, और वो कैसे होती है इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम पहले आचार्य लेंगे, आचार्य चरक। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र की उत्पत्ति कितने दिनों में हो रही है, 7 दिनों में हो रही है। वो कैसे, खाना खाने के बाद रस धातु की उत्पत्ति पहले दिन, रक्त धातु की उत्पत्ति दूसरे दिन, वैसे ही मास तीसरे दिन, और अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें तो शुक्र कौन से दिन आ जाएगा, 7वें दिन आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि आचार्य चरक के अनुसार मेद धातु की उत्पत्ति कितनी होती है, तो यहाँ कौन से दिन पे है, 4 नंबर के दिन पे। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मेद का सीक्वेंस ही 4 नंबर पे है। सो अगर चरक के अनुसार हमें किसी भी धातु की उत्पत्ति पूछी तो हमें सिर्फ उस धातु के सीक्वेंस पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आचार्य चरक के अनुसार मेद धातु की उत्पत्ति किस दिन होती है, तो सीक्वेंस से चलो, रस रक्त मास मेद। मेद ये 4 नंबर का धातु है तो चौथे दिन होगी। उसी तरह से शुक्र ये 7 नंबर का धातु है तो शुक्र की उत्पत्ति आचार्य चरक के अनुसार कौन से दिन होने वाली है, 7वें दिन। इस तरह से हम चरक का रेफरेंस फॉलो करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेफरेंस है पाराशर का। पाराशर ने शुक्र की उत्पत्ति कौन से दिन बताई है, 8वें दिन। उसका उन्होंने डिटेल वर्णन कैसे किया है कि उनका बोलना है खाना खाने के बाद पहले दिन आहार रस उत्पन्न होता है, रस धातु नहीं, आहार रस की उत्पत्ति होती है। और रस धातु की उत्पत्ति कब होती है, सेकंड डे पे। फिर एक एक दिन चलेगा, रक्त की 3rd, है ना, मास की 4th। इस तरह से अगर हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाए तो शुक्र धातु की उत्पत्ति कौन से दिन होने वाली है, यहाँ पे 8वें दिन। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या याद रखना है, अगर आचार्य पाराशर के अनुसार शुक्र धातु की उत्पत्ति पूछी तो शुक्र 7 नंबर का धातु, उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। या फिर पाराशर के अनुसार किसी भी धातु की उत्पत्ति पूछी, उस धातु के सीक्वेंस पे जाना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आचार्य पाराशर के अनुसार मेद धातु की उत्पत्ति किस दिन होती है, रस रक्त मास मेद। मेद ये 4 नंबर का धातु है। आचार्य पाराशर पूछा है, 1 ऐड कर दो, 4 और 1 5। ये देखो यहाँ पे 5वें दिन हो गई उत्पत्ति। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार शुक्र धातु की उत्पत्ति कौन से दिन हो रही है, यहाँ पे 30th डे, 30वें दिन हो रही है। वो कैसे, खाना खाने के बाद फर्स्ट डे क्या उत्पन्न हुआ, रस धातु। उसके 5 दिन बाद रक्त धातु, उसमें 5 ऐड करो मांस धातु, इसमें 5 ऐड करो मेद धातु, और ऐसे 5 अगर ऐड करते गए हम तो शुक्र धातु किस दिन उत्पन्न होने वाला है, 30th डे, 30वें दिन उत्पन्न होने वाला है। सो हमें क्या याद रखना है, अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछते हैं तो रस धातु तो एक दिन से ही शुरू करना है, उसके बाद अगर कोई भी धातु तो उसमें 5 ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेद धातु की उत्पत्ति किस दिन होती है, तो हमें क्या करना है, मेद धातु का सीक्वेंस रस रक्त मास मेद। रस को पहले दिन से शुरू करो 1, फिर 5 दिन ऐड करो, 5 10 15। ये देखो 15th डे पे मेद धातु की उत्पत्ति होगी। तो सिंपली क्या याद रखना है, 1 से शुरू करना है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि रस धातु ही 5 से शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। रस धातु फर्स्ट डे, उसके बाद 5 का एडिशन हमें करना है। उसके बाद रेफरेंस नया आता है आचार्य वाग्भट के अनुसार। सो आचार्य वाग्भट के अनुसार, वाग्भट का मत नहीं है, वाग्भट संहिता में वाग्भट ने अन्य मतों का यहाँ पे वर्णन किया है, और वाग्भट संहिता में अन्य मतों के अनुसार शुक्र धातु की उत्पत्ति कौन कौन से दिन हो सकती है, फर्स्ट डे भी हो सकती है, फर्स्ट डे भी हो सकती है, 6th डे पर भी हो सकती है, और 30th डे पर भी हो सकती है। सो हमें ये तीनों अलग अलग डेज याद रखना है। ये जो अलग अलग दिन दिए हैं ये शरीर में होने वाले धातु पोषण न्यायों के बेसिस पर अलग अलग दिन दिए हुए हैं। ये धातु पोषण न्यायों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अभी के लिए हमें क्या रखना है, आचार्य वाग्भट में अन्य मतानुसार शुक्र धातु की उत्पत्ति 1st 6th और 30th डे,
ये तीनों दिनों पे होती है। और आखिरी का रेफरेंस है भाव प्रकाश का। ये रेफरेंस उतना याद नहीं रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार शुक्र धातु की उत्पत्ति में कितना टाइम लगता है, 1 माह और 9 दंड। ये अगर ऐसे याद रखा तो ठीक है, नहीं तो वो रेफरेंस भी कुछ खास काम का नहीं है। हमें चारों रेफरेंस याद रखना है। किसके किसके, चरक, पराशर, सुश्रुत और वाग्भट। चरक के लिए जो नंबर का धातु उस दिन उसकी उत्पत्ति। पाराशर के अनुसार जो नंबर का धातु उसमें एक ऐड कर दो तब उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। और सुश्रुत के अनुसार जो नंबर का धातु उस नंबर पर आओ, पहला नंबर 1 से शुरू करो और फिर बाद में 5-5 का एडिशन करते हुए उस नंबर तक पहुंचो, तो आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। और आचार्य वाग्भट के अनुसार शुक्र उत्पत्ति कैसे दी है, 1 दिन पर भी हो सकती है, 6 दिन में भी हो सकती है और 30 दिन में भी होती है, जो डिपेंड करता है शरीर में होने वाले धातु पोषण न्यायों पर, जिसका वर्णन हम डिटेल में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा ओज के प्रकार और उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन, उनका स्थान देखा, उनका मेजरमेंट देखा और उनका वर्ण देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में हमने क्या देखा कि शुक्र और ओज, इनके गंध, रस और रूप में क्या अलग अलग भेद है वो हमने देखे। और तीसरा टेबल हमने आज देखा कि शुक्र उत्पत्ति अलग अलग आचार्य के अनुसार किस दिन होती है, या फिर किसी भी धातु की उत्पत्ति अलग अलग आचार्य के अनुसार किस दिन होती है। आज के लिए हम यहाँ पर वीडियो रोक देंगे, कल हम फिर से नए टेबल से और नए टॉपिक के साथ हमारा वीडियो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।